Hello dear students. So this is the second video from chapter life process. Life process is basically the process which is essential for the living organisms to be alive. So there are total 4 life process in our chapter. So the first is nutrition. So already we have completed the nutrition in detail in the last video. Now this video will be based on the respiration. Then we have to also discuss the transportation, and then we have to also discuss the excretion. So these are the 4 life process which is important in the living organism. So in this video we are going to discuss in detail about the respiration. So what is respiration, like at which cell level the respiration occurs, how is the respiration in animals, how is the respiration in human beings, how is the respiration in plants, everything we are going to discuss in detail. So let's start discussing this video more in detail. So we are going to focus in respiration. Okay, so respiration is also one of the important life process. Now many of the students think that breathe in and breathe out, this is the respiration, but this is not the right answer. Respiration basically occurs at cell level. So let's discuss what is respiration. See, exact definition of respiration. So if you see the exact definition of respiration, so what is the exact definition of respiration? The process in which the cells of an organism, we can say the process in which the cells of the living organism obtain energy. So here basically we obtain what? Here we obtain energy. So by respiration, the living organisms are going to obtain energy. How they are going to obtain energy? By combining oxygen and glucose. So we can get energy by combining the oxygen and glucose. So when we combine the oxygen and glucose, we get energy, and this process occurs at cell level. Basically this occurs at cytoplasm, this occurs in mitochondria, right? So this process is called as respiration and it involves breathing. Okay, this process involves breathing. I hope so the concept is now crystal clear. So breathing is not the respiration, right? Respiration is nothing but the process in which the energy is formed by combining the oxygen and the glucose. Now from where do we get the glucose? Already in the previous video we have discussed, we get the glucose from the nutrition, from the diet. So from the nutrition, from the diet, we get the glucose, and by breathing we get the oxygen. And when this both things get combined at the cell level, then we get energy. And this process, okay, so this process is called as your respiration process. Now I hope so the concept of respiration is crystal clear to you all. Okay, और एक बार रिवीजन करेंगे. रेस्पिरेशन बेसिकली होता क्या है? ये एक ऐसा प्रोसेस है जहाँ पे एनर्जी फॉर्म होता है, और एनर्जी कहाँ पे फॉर्म होता है? अपने सेल्स के लेवल पे. बेसिकली दो चीज़ों को कंबाइन करते हुए, ऑक्सीजन एंड ग्लूकोज. ऑक्सीजन कहाँ से मिला? ब्रीदिंग से हमें ऑक्सीजन मिला, और अपने डाइट मतलब अपने न्यूट्रिशन से हमें ग्लूकोज मिला. जब ये दोनों चीज़ें कंबाइन होगा अपने सेल के लेवल पे, तो वहाँ पे एनर्जी बनेगा. सो एनर्जी जब बनता है, इसी प्रोसेस को हम बोलते हैं रेस्पिरेशन. ओके, there are basically 2 types of respiration. If you see, अगर respiration हम देखेंगे, there are 2 types of respiration. What are the 2 types of respiration? The first is called as the aerobic respiration. Aerobic respiration का definition क्या बोलता है? It is the process of producing energy in the presence of oxygen. So when the respiration takes place with the presence of oxygen, then that respiration is called as aerobic respiration. And what is anaerobic respiration? Anaerobic respiration का मतलब होता है, यहाँ पे भी एनर्जी प्रोड्यूस होता है, राइट? यहाँ पे भी एनर्जी प्रोड्यूस होता है, बट इन द एब्सेंस ऑफ ऑक्सीजन और इन द लैक ऑफ ऑक्सीजन. सो व्हेन द एनर्जी इज प्रोड्यूस्ड इन द एब्सेंस ऑफ ऑक्सीजन और इन द लैक ऑफ ऑक्सीजन, then that is termed as anaerobic respiration, right? Anaerobic respiration, mostly it is seen in plants, and aerobic respiration it is seen in we human beings, right? So we intake, हम ब्रीदिंग करने से अपने बॉडी के अंदर ऑक्सीजन जाएगा, एंड ऑक्सीजन के प्रेजेंस में ही अपना एनर्जी बनेगा. तो वी फॉलो द एरोबिक रेस्पिरेशंस, राइट? एंड प्लांट्स के अंदर भी होता है. प्लांट्स एक्चुअली टेक इन द कार्बन डाइऑक्साइड. प्लांट्स क्या करते हैं? कार्बन डाइऑक्साइड को लेते हैं, सनलाइट को लेते हैं, एंड अपना एनर्जी बनाते हैं. वहाँ पे उनको ऑक्सीजन जरूरत नहीं है. ऑक्सीजन तो उनका बाई प्रोडक्ट होता है. अगर आपने न्यूट्रिशन का वीडियो देखा रहेगा तो उसमें मैंने बोला है, राइट? सो द बाई प्रोडक्ट ऑफ द फोटोसिंथेसिस इज द ऑक्सीजन. सो दैट मतलब यहाँ पे एनर्जी बनने के लिए ऑक्सीजन की जरूरत ही नहीं है. तो दैट काइंड ऑफ
दैट काइंड ऑफ रेस्पिरेशन इज कॉल्ड एज एनएरोबिक रेस्पिरेशन. इन शॉर्ट, अगर एकदम सिंपल क्रिस्टल क्लियर बोलूँ तो अगर आपका एनर्जी फॉर्म हो रहा है विद द प्रेजेंस ऑफ ऑक्सीजन, देन दैट इज कॉल्ड एज योर एरोबिक रेस्पिरेशन. अगर एनर्जी फॉर्म हो रहा है in the absence of oxygen or in the lack of oxygen, then that is called as the anaerobic respiration. Okay, so I hope so now the concept is crystal clear to you. ठीक है, so after discussing this, now we go to the next slide. Yes, so basically अब ये respiration को थोड़ा और डिटेल में सेल के लेवल पे जाके समझते हैं हम लोग. बेसिकली सेल्स पे जाके इस respiration को डिटेल में समझ लेंगे. ठीक है, so as you all know from the nutrition, when we intake the food, so हमें मिल जाता है ग्लूकोज. हमें क्या मिल जाता है? हमें मिल जाता है ग्लूकोज. एंड ग्लूकोज का जब ग्लूकोज का केमिकल फार्मूला क्या होता है? C6H12O6. दिस इज द केमिकल फार्मूला फॉर ग्लूकोज, मतलब अपना फूड. ठीक है, अपना फूड जो होता है ना, उसी को हम ग्लूकोज बोलेंगे. ठीक है, हाँ, उससे ही तो हमें एनर्जी मिलेगा ना, उससे उसका ब्रेकडाउन होने के बाद ही हमें एनर्जी मिलेगा. ठीक है, सो ग्लूकोज मतलब अपना फूड बेसिकली. ठीक है, अपना फूड बोलो. ठीक है, सो फूड जब अपने बॉडी के अंदर जाएगा, सेल के लेवल पे क्या होता है? बेसिकली फूड का ब्रेकडाउन होता है. फूड का क्या होता है? ब्रेकडाउन. सो फूड का जब ब्रेकडाउन होगा, मतलब ग्लूकोज का जब ब्रेकडाउन होगा, उस प्रोसेस को हम ग्लाइकोलिसिस बोलते हैं. सो ग्लूकोज का ब्रेकडाउन जब होगा, उस प्रोसेस को क्या बोलने का? ग्लाइकोलिसिस. और ये पूरा कार्यक्रम किधर चल रहा है? ये पूरा प्रोग्राम किधर चल रहा है? ये सब हो रहा है साइटोप्लाज्म के अंदर. कहाँ पे हो रहा है ये पूरा प्रोग्राम? साइटोप्लाज्म के अंदर. अपने सेल के लेवल पे अपन बात कर रहे हैं रेस्पिरेशन क्या होता है. ठीक है, सो ग्लूकोज का जब ब्रेकडाउन होता है साइटोप्लाज्म के अंदर, तो उस प्रोसेस को हम ग्लाइकोलिसिस बोलते हैं. एंड इसका रिजल्ट क्या रहेगा? इसका आउटकम क्या रहेगा? पायरुविक एसिड. इसका आउटकम क्या रहेगा? पायरुविक एसिड प्लस एनर्जी. एनर्जी मतलब ताकत, जिसको हम बोलते हैं एटीपी मॉलिक्यूल, एडिनोसाइन ट्राइफॉस्फेट मॉलिक्यूल. बट अपने ह्यूमंस के अंदर सिर्फ एटीपी ही एनर्जी नहीं होता है, और भी कुछ एनर्जी होता है, जैसे कि NADH हो गया, FADH हो गया. FADH मतलब फ्लैविन एडेनाइन डाइन्यूक्लियोटाइड. NADH मतलब यहाँ पे आप लिख देता हूँ, चलो. NADH निकोटिन एडेनाइन डाइन्यूक्लियोटाइड. ठीक है, उसके बाद FADH फ्लैविन एडेनाइन डाइन्यूक्लियोटाइड. उसके बाद और एक होता है GTP. जैसे ATP होता है वैसे और एक होता है GTP, गुआनासाइन ट्राइफॉस्फेट. सो दीज ऑल आर द एनर्जी मॉलिक्यूल्स. बट ये सब आपको आपके 11th एंड 12th के हायर क्लासेस पे आपको पढ़ना है. निकोटिन एडेनाइन डाइन्यूक्लियोटाइड, फ्लैविन एडेनाइन डाइन्यूक्लियोटाइड, गुआनासाइन ट्राइफॉस्फेट. सो दीज आर ऑल्सो द एनर्जी मॉलिक्यूल्स. ये आपको अब भी नहीं है, आपको 10th में तो ये सब कंसेप्ट नहीं है. जस्ट फॉर ए काइंड इन्फॉर्मेशन मैंने आपको बोला. अब भी के लिए आपको 10th में सिर्फ पढ़ना है कि ATP के बारे में. ठीक है, सो यहाँ पे ATP एग्जैक्टली बहुत बड़ा एक एनर्जी मॉलिक्यूल होता है. बाकी के भी एनर्जी मॉलिक्यूल्स है, बट थोड़े उतने ज़्यादा नहीं. अपना ATP भाई साहब ज़रा ज़्यादा ही एनर्जी हमें देके चले जाते हैं. ठीक है, सो यहाँ पे क्या होता है? जब ग्लूकोज का ब्रेकडाउन होता है पायरुविक एसिड में, तो उस प्रोसेस के दौरान हमें मिल जाता है ATP, एडिनोसाइन ट्राइफॉस्फेट. ठीक है, हाँ. नाउ पायरुविक एसिड का बेसिकली 3 वेज में यूज हो सकता है. पायरुविक एसिड का बेसिकली 3 वेज में यूज हो सकता है. तो यू कैन सी द 3 ग्राफ हियर. सो सबसे पहले होगा पायरुविक एसिड का एब्सेंस ऑफ ऑक्सीजन में भी यूज हो सकता है. ठीक है, पायरुविक एसिड कैन बी यूज्ड इन एब्सेंस ऑफ ऑक्सीजन. सो अगर पायरुविक एसिड को हम ऑक्सीजन के एब्सेंस में यूज करते हैं, तो वहां पे हमें मिलेगा इथेनॉल. वहां पे हमें क्या मिलेगा? इथेनॉल. ठीक है, इसको हमेशा याद रखना. पायरुविक एसिड, देखो, पायरुविक एसिड बेसिकली 3 वेज में यूज हो सकता है. पायरुविक एसिड को हम लोग 3 वेज में यूज कर सकते हैं. एक होता है इन एब्सेंस ऑफ ऑक्सीजन, एक होता है इन लैक. ठीक है, दिस इज ए. एक होता है इन लैक ऑफ ऑक्सीजन एंड एक होता है इन प्रेजेंस ऑफ ऑक्सीजन. तो तीनों कंडीशंस में जब हम अपना पायरुवेट एसिड को यूज करेंगे, तो क्या आउटकम रहेगा वो हम लोग डिस्कस करेंगे. ठीक है, और एक बार, ग्लूकोज, अपने न्यूट्रिशन से ग्लूकोज सेल्स पे अपना फूड गया, मतलब सेल्स के लेवल पे अपना ग्लूकोज गया, ब्रेकडाउन हुआ, ग्लाइकोलिसिस से मिला पायरुवेट और एनर्जी. अब वो पायरुवेट जो है ना, पायरुवेट का आगे का पार्ट है. ये पायरुवेट ऑक्सीजन के एब्सेंस में कैसे रिएक्ट करेगा, पायरुवेट ऑक्सीजन के प्रेजेंस में कैसे रिएक्ट करेगा, या पायरुवेट ऑक्सीजन के या यहाँ पे बोल सकते हैं लैक ऑफ ऑक्सीजन के केस में कैसे रिएक्ट करेगा. सी, पायरुविक एसिड ऑक्सीजन के प्रेजेंस में कैसे रिएक्ट करेगा? इट इज गोइंग टू गिव यू द इथेनॉल, कार्बन डाइऑक्साइड एंड एनर्जी. इथेनॉल अगर आप देखोगे तो इथेनॉल का केमिकल फॉर्मूला होता है C2H5OH. सो इथेनॉल बनेगा, कार्बन डाइऑक्साइड बनेगा और साथ साथ एनर्जी भी आपको मिलेगा. ठीक है, मतलब
इसका ही फर्दर पार्ट है ये, ठीक है, पायरुविक एसिड प्लस एनर्जी का फर्दर पार्ट है। हाँ, अब पायरुविक एसिड प्लस एनर्जी अगर ये केस में आया तो क्या होगा, लैक ऑफ ऑक्सीजन के केस में आया तो क्या होगा, लैक ऑफ ऑक्सीजन मतलब जैसे कि अपने बॉडी के अंदर कभी लैक ऑफ ऑक्सीजन हो गया तो वहां पे लैक्टिक एसिड बनेगा और एनर्जी बनेगा, ठीक है। ऑल्सो एलैबोरेट विद एग्जांपल, इसका सबसे बेस्ट एग्जांपल, एब्सेंस ऑफ ऑक्सीजन का सबसे बेस्ट एग्जांपल वी कैन टेक द एग्जांपल ऑफ यीस्ट। यीस्ट इज वन ऑफ द बेस्ट एग्जांपल जो कि हम फर्मेंटेशन प्रोसेस में यूज करते हैं, ठीक है। सो फर्मेंटेशन प्रोसेस में हम जो यीस्ट को यूज करते हैं ना, यीस्ट बेसिकली पायरुविक एसिड को इथेनॉल में कन्वर्ट करेगा एंड वो कार्बन डाइऑक्साइड को एज अ बाई प्रोडक्ट रिलीज करेगा। कार्बन डाइऑक्साइड को जब वो बाई प्रोडक्ट रिलीज करेगा तो इसके लिए हम मोस्टली यीस्ट को ढोकला बनाने में या केक बनाने में यूज करते हैं, बिकॉज वो बहुत ज़्यादा अमाउंट ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड को रिलीज करता है। बहुत ज़्यादा अमाउंट ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड रिलीज करने की वजह से अपने वो जो प्रोडक्ट्स है वो फ्लफी बन जाते हैं, ठीक है। आपने देखा रहेगा केक को आपने देखा रहेगा, ब्रेड आपने देखा रहेगा, उसमें से आपको पोर्स दिखता रहेगा बहुत ज़्यादा। वो पोर्स आए क्यों, बिकॉज वहाँ पे बहुत ज़्यादा कार्बन डाइऑक्साइड का एवोल्यूशन हुआ है और वो कार्बन डाइऑक्साइड का एवोल्यूशन करने के लिए ये यीस्ट एक एक्चुअली अपन बोल सकते हैं एक यूनिसेल्युलर ऑर्गेनिज्म है जो कार्बन डाइऑक्साइड को इवॉल्व करने में हेल्प करेगा और अपने फूड आइटम्स को फ्लफी बनाने में हेल्प करेगा, ठीक है। सो ये होता है इन एब्सेंस ऑफ ऑक्सीजन। अगर पायरुविक एसिड और एनर्जी लैक ऑफ ऑक्सीजन के केस में कैसे रिएक्ट करेगा, जैसे कि हम ह्यूमंस, ठीक है, अपने ह्यूमन बॉडी में, ठीक है, अपना ह्यूमन बॉडी का एग्जाम्पल लेते हैं। फॉर एग्जाम्पल अगर मैंने बोला कि आपको 10 फ्लोर्स तक भागते हुए जाना है, ठीक है, या आपको 10 किलोमीटर 2 किलोमीटर से जॉगिंग करना है, ठीक है, आपको ऐसा कोई तो एक्टिविटी में आपको इवॉल्व कर दो जिसके थ्रू आपका मसल एक्टिविटी बहुत ज़्यादा बढ़ जाएगा। सो यहाँ पे क्या होगा, या आप जब कोई बहुत ज़्यादा वेट लिफ्टिंग करते हो, आप बहुत ज़्यादा कोई एक्टिविटी कर लेते हो तो क्या होता है, आपके मसल्स में पेन होता है, आपके मसल्स में क्रैम्प्स आते हैं। नोटिस किया आपने, आपके मसल्स में, ठीक है, आपके मसल्स में क्रैम्प्स आता है। सो आपके मसल्स में क्रैम्प्स क्यों आएगा, बिकॉज ऑफ लैक ऑफ ऑक्सीजन। वहाँ पे जो भी ऑक्सीजन था वो कंज्यूम हो जाता है, ठीक है। सो जब मैं अगर समझो अगर मेरे हाथ में कोई डंबल दिया और डंबल को अगर मुझे ऐसे वेट लिफ्टिंग करने बोला तो स्टार्टिंग में कर लूँगा, यार क्या बात है, क्या बोल रहे हैं आप, चलो स्टार्टिंग में कर लूँगा, बट धीरे धीरे मेरे मसल्स के अंदर का ऑक्सीजन कम होना स्टार्ट होगा। जब मेरे मसल्स के अंदर का ऑक्सीजन कम होना स्टार्ट होगा तो उस कंडीशन को मैं बोलूँगा लैक ऑफ ऑक्सीजन। सो इन लैक ऑफ ऑक्सीजन फिर वहाँ पे क्या प्रोड्यूस होना स्टार्ट होगा, लैक्टिक एसिड प्रोड्यूस होना स्टार्ट हो जाएगा। मसल्स के अंदर लैक्टिक एसिड प्रोड्यूस होना स्टार्ट हो जाएगा, जिसके वजह से मसल्स में आपको क्रैम्प्स आएगा और वो पेनफुल रहेगा। समझ में आ रहा है सबको? अभी तो मेरे मसल्स में ऑक्सीजन भर के है, बट अगर मैं यहाँ पे कोई एक्टिविटी करना स्टार्ट कर दूँ, बॉडी शॉडी बनाना स्टार्ट कर दूँ या डंबल्स को लिफ्ट करना स्टार्ट कर दूँ, तो जब यहाँ पे बहुत ज़्यादा एक्टिविटी हो जाएगा तो मसल्स के अंदर का ऑक्सीजन यूज हो जाएगा और वहाँ पे लैक ऑफ ऑक्सीजन हो जाएगा, एंड विच कैन रिजल्ट इन फॉर्मेशन ऑफ लैक्टिक एसिड प्लस एनर्जी। देन इन प्रेजेंस ऑफ ऑक्सीजन, ये अब होगा माइटोकॉन्ड्रिया में। अगर आपके पास ऑक्सीजन प्रेजेंट है, ठीक है, तो आपका जो पायरुविक एसिड है दैट विल गेट कन्वर्ट इनटू कार्बन डाइऑक्साइड, इट विल गिव सम वाटर एंड इट इज ऑल्सो गोइंग टू गिव द एनर्जी मॉलिक्यूल कॉल्ड एज ATP, ठीक है। सो कार्बन डाइऑक्साइड हम जब एक्सहेल करते ना, इनहेल करते तो ऑक्सीजन, एक्सहेल करते तो कार्बन डाइऑक्साइड। सो एक्सहेल जब हम करेंगे ना तो हम कार्बन डाइऑक्साइड को एक्सहेल करते हैं, और कार्बन डाइऑक्साइड कब बनेगा, जब एनर्जी फॉर्म होती है। जब एनर्जी फॉर्म होती है तब कार्बन डाइऑक्साइड बनेगा और वो हम एक्सहेल कर देते। ऑक्सीजन लेके बॉडी के अंदर जाएगा, ग्लूकोज ऑक्सीजन माइटोकॉन्ड्रिया में मिलके एनर्जी बनाएगा, ATP बनाएगा, और उसका बाई प्रोडक्ट क्या रहेगा, कार्बन डाइऑक्साइड, जिसको हम एक्सहेल कर देते हैं। और ऐसे ये प्रोसेस है अपने हर एक बॉडी सेल पे रेस्पिरेशन होते रहता है। और एक बार जल्दी से रिवाइज करते हैं। ऑक्सीजन, अभी देखो, ब्रीथ करने से ऑक्सीजन मेरे बॉडी के अंदर चला गया, हर एक सेल्स पे ऑक्सीजन जाके पहुंचेगा, ठीक है। अभी मैंने डाइट कंज्यूम किया था, न्यूट्रिशन कंज्यूम किया था, उससे मेरे बॉडी को मिला ग्लूकोज, बराबर। ग्लूकोज ऑक्सीजन कंबाइन होगा, ग्लूकोज और ऑक्सीजन जब कंबाइन होगा मेरे सेल्स पे, स्पेशली माइटोकॉन्ड्रिया में क्या होगा, माइटोकॉन्ड्रिया में जब ऑक्सीजन रहेगा तो वहाँ पे एनर्जी बनेगा, एनर्जी के साथ साथ और क्या बनेगा, कार्बन डाइऑक्साइड एंड वाटर। कार्बन डाइऑक्साइड तो मैं उसको एक्सहेल आउट कर दूंगा और मुझे फाइनली मिल गया एनर्जी ATP। सो वो एनर्जी फिर मेरे बॉडी के मसल्स, वो एनर्जी मेरा बॉडी यूटिलाइज करेगा टू परफॉर्म द वेरियस एक्टिविटीज। इस कंप्लीट प्रोसेस को हम बोलते हैं एरोबिक रेस्पिरेशन। एरोबिक रेस्पिरेशन क्यों बोलते हैं, बिकॉज यहाँ पे रेस्पिरेशन हुआ इन प्रेजेंस ऑफ ऑक्सीजन। इन प्रेजेंस ऑफ ऑक्सीजन जब रेस्पिरेशन होता है तो हम बोलते हैं इसको एरोबिक रेस्पिरेशन। आई होप सो नाउ द कंसेप्ट्स आर क्रिस्टल क्लियर टू यू, ठीक है। सो ये चार्ट सबको ड्रॉ करना है, एक बहुत इंपॉर्टेंट चार्ट है, इसका स्क्रीनशॉट ले लो और सबको ये चार्ट कंपलसरी ड्रॉ करना पड़ेगा।
चलो, नाउ वी गो टू द नेक्स्ट स्लाइड. नाउ द एनर्जी रिलीज्ड ड्यूरिंग सेलुलर रेस्पिरेशन इज यूज्ड टू सिंथेसाइज मॉलिक्यूल कॉल्ड एज एटीपी. यस, ठीक है. अब भी हमने थोड़ी देर पहले डिस्कस किया था, अपने बॉडी के पास ग्लूकोज कहाँ से मिलेगा हमें? फ्रॉम द न्यूट्रिशन, और ब्रीदिंग से हमें ऑक्सीजन मिलेगा. ठीक है, ये रिजल्ट करेंगे एनर्जी में. ये क्या रिजल्ट करेंगे? एनर्जी में. ये एनर्जी मतलब अपना बेसिकली होता है एटीपी. ठीक है, एडिनोसाइन ट्राइफॉस्फेट. ठीक है, सो यही यहाँ पे बोला है, द एनर्जी रिलीज्ड ड्यूरिंग सेलुलर रेस्पिरेशन, ठीक है, इज यूज्ड टू सिंथेसाइज मॉलिक्यूल कॉल्ड एज एटीपी, एडिनोसाइन ट्राइफॉस्फेट. ठीक है, एडिनोसाइन ट्राइफॉस्फेट इज द एनर्जी मॉलिक्यूल जिसको यूज करके अपने बॉडी को एनर्जी मिलेगा और हम बहुत सारे एक्टिविटीज परफॉर्म कर सकते हैं. अभी मैं यहाँ पे आपके सामने लेक्चर ले रहा हूँ, ठीक है, आप लेक्चर सुन पा रहे हैं. फॉर ईच एंड एवरीथिंग वी रिक्वायर एनर्जी. सोचने के लिए भी एनर्जी लगता है, राइट. इमेजिनेशन के लिए भी एनर्जी लगता है. कोई ऑब्जेक्ट को वेट लिफ्ट करने के लिए एनर्जी लगता है, कोई मूवमेंट करने के लिए एनर्जी लगता है. सो आवर कंप्लीट बॉडी रिक्वायर्स एनर्जी टू परफॉर्म वेरियस एक्टिविटीज. उसके बिना काम तो नहीं चलेगा भाई. चलो, सो अब हम बात करते हैं द ह्यूमन रेस्पिरेटरी सिस्टम. ठीक है, अभी अपना ह्यूमन रेस्पिरेटरी सिस्टम के बारे में बात करते हैं. ठीक है, सो यू कैन सी द नेजल कैविटी. सो नेजल कैविटी को यूज करके हम लोग अपने ऑक्सीजन को अपने बॉडी के अंदर लेके जाते हैं. ठीक है, सो यहाँ से ऑक्सीजन जाएगा एंड यहाँ पे आपको देखने मिलेगा फेरिंग्स. फेरिंग्स मतलब अ कॉमन पॉइंट वेयर, मतलब आपका माउथ और आपका जो नोस, ठीक है, इनका कॉमन पॉइंट यहाँ पे आपको, उसको हम बोलते हैं फेरिंग्स. सो आपका ऑक्सीजन जो है वो यहाँ से फेरिंग्स के थ्रू लैरिंग्स में जाएगा. लैरिंग्स मतलब ये अपना जहाँ से साउंड प्रोड्यूस होता है ना, उसको हम बोलते हैं लैरिंग्स. सो जहाँ पे साउंड एक्जैक्टली प्रोड्यूस होगा दैट इज द लैरिंग्स. वहाँ से अपना ऑक्सीजन जाएगा फिर ब्रोंकियोल मतलब ट्रेकिया में जाएगा. ट्रेकिया इज अ पाइप, मस्कुलर पाइप विच इज गोइंग टू एक्सटेंड फ्रॉम लैरिंग्स टू योर लंग्स. सो एक ऐसा पाइप जो आपके लैरिंग से लंग्स तक एक्सटेंड होगा, उसको हम बोलेंगे ट्रकिया. सो ट्रकिया आगे दो हिस्सों में डिवाइड होगा. दो लंग्स देना डेफिनेटली यार अपने पास. सो दो हिस्सों में डिवाइड होगा. ठीक है, तो उसको हम बोलेंगे ब्रोंकियोल्स. ठीक है, बेसिकली ब्रोंकाई बोलेंगे. ऐसे दो हिस्सों में डिवाइड होगा, उसको हम बोलेंगे ब्रोंकाई. एंड ब्रोंकाई इज गोइंग टू फर्दर डिवाइड इनटू वेरियस ब्रोंकियोल्स. ठीक है, और एक बार ट्रकिया आगे जाके दो हिस्सों में डिवाइड होगा, जिसको हम बोलेंगे ब्रोंकाई. ब्रोंकाई आगे और बहुत सारे ब्रांचेस में डिवाइड होगा. यू कैन सी ये ब्रोंकाई आगे बहुत सारे ब्रांचेस में डिवाइड होगा, जिसको हम क्या बोलेंगे? ब्रोंकियोल्स. और ब्रोंकियोल्स के एकदम एंड पे आपको मिलेगा एल्वियोलस. अब ये एल्वियोलस बेसिकली क्या है, ये हम नेक्स्ट स्लाइड में डिस्कस करेंगे. ठीक है, एल्वियोलस के अंदर बेसिकली आपका गैसेस का एक्सचेंज होता है. ठीक है, एल्वियोलस के अंदर अभी यहाँ से जो ऑक्सीजन जा रहा है ना, वो एल्वियोलस के अंदर जाने के बाद आपके ब्लड स्ट्रीम के अंदर जाएगा. और ब्लड स्ट्रीम के अंदर जो कार्बन डाइऑक्साइड है वो आपके एल्वियोलस के अंदर आएगा और यहाँ से फिर वो एक्सेल आउट होगा. और एक बार यहाँ से ऑक्सीजन जाएगा. ऑक्सीजन गया एकदम. ऑक्सीजन यहाँ से जाएगा. ऑक्सीजन यहाँ पे जाते एकदम अपने ब्रोंकियोल्स के एंड पॉइंट तक जाएगा. ब्रोंकियोल्स के एंड पे आपको ऐसे बलून जैसे एक सैक मिलेगा, जिसको हम बोलेंगे एल्वियोलस. एल्वियोलस के एकदम नीचे होते ब्लड कैपिलरीज. एल्वियोलस के यहाँ पे आपको दिखाई देता हूँ. ठीक है, एल्वियोलस के ये देखो. सो ये आपका एंड पॉइंट है. ठीक है, आपके ब्रोंकियोल्स का एंड पॉइंट मतलब आपको ऐसे बलून जैसे स्ट्रक्चर मिलेगा. और ये बलून जैसे स्ट्रक्चर को लगा होता है ब्लड कैपिलरीज. ठीक है, कैन यू सी रेड कलर में आर्टरीज, ब्लू कलर में वेन्स. आपको बेसिक के लेक्चर में मैंने बताया था, आर्टरीज कैरी द ऑक्सीजनेटेड ब्लड एंड वेन्स कैरी द डीऑक्सीजनेटेड ब्लड. सो यहाँ पे अपना गैस का एक्सचेंज होता है. ठीक है, अभी हम जो ऑक्सीजन इनहेल करते हैं ना, तो ये जा रहा है नोज के थ्रू, फिर अपने फेरिंग्स, फिर लैरिंग्स, फिर ट्रकिया के आगे जाके हुए. ठीक है, ट्रकिया के आगे जाते हुए फिर अपना ब्रोंकस से बहुत सारे ब्रांचेस के एकदम एंड पॉइंट हमको मिलेगा एल्वियोलस के एकदम नीचे लगा होता है ब्लड वेसल्स. और ये ब्लड वेसल्स के अंदर बेसिकली अपना गैसेस का एक्सचेंज होगा. अब ऑक्सीजन जो मैंने इनहेल किया था, तो वो ऑक्सीजन यहाँ पे है. सो ऑक्सीजन जो है, ठीक है, यहाँ पे ध्यान दो, ऑक्सीजन. ठीक है, ये अभी इसके अंदर समझो ऑक्सीजन है. सो ये ऑक्सीजन जो है ये फिर जाएगा अपने आर्टरीज के अंदर. कहाँ पे जाएगा ऑक्सीजन? अपने आर्टरीज के अंदर. यहाँ से फिर अपने हार्ट की तरफ जाएगा. ठीक है, फिर हार्ट उसको पूरे बॉडी में पंप करेगा. ठीक है, हाँ. सो यहाँ से अपना ऑक्सीजन किसके अंदर जाएगा? आर्टरीज. ये रेड कलर में आपको जो दिख रहा है ना, इसको हम बोलते हैं आर्टरीज कैरी द ऑक्सीजनेटेड ब्लड. ठीक है, और ये वेन्स है ना, ये वेन्स
ये वेन्स अपने हार्ट, मतलब देखो अपना हार्ट नेक्स्ट में सर्कुलेशन में आपको डिस्कस करना ही है। सो इनके पास रहेगा अपना डीऑक्सीजनेटेड ब्लड, सो इसको हम बोलते हैं वेन्स। वेन्स के पास रहेगा इम्प्योर ब्लड, ये आप अभी इम्प्योर ब्लड में कौन रहेगा, इम्प्योर ब्लड में अपने पास रहेगा CO2, इम्प्योर ब्लड में कौन रहेगा CO2। अब इसके अंदर जाएगा फिर CO2, ठीक है, आया कौन, ऑक्सीजन, और यहां से गया कौन, कार्बन डाइऑक्साइड। आया कौन, ऑक्सीजन, गया कौन, कार्बन डाइऑक्साइड। सो बेसिकली गैस का एक्सचेंज कहां पे हो रहा है, अपने एल्वियलस के अंदर। गैस का एक्सचेंज कहां पे हो रहा है, अपने एल्वियलस के अंदर, ठीक है। चलो, सो आपको मैंने एकदम माइक्रोस्कोपिक लेवल पे जाके बातों को समझा दिया, ठीक है। चलो, सो यहां पे डिस्कस करते हैं। ऑक्सीजन रिच एयर इज टेकन इनटू द बॉडी थ्रू द नोज। सो नोज के थ्रू हम लोग ऑक्सीजन को अपने बॉडी के अंदर लेते हैं। द एयर इज फिल्टर्ड बाय फाइन हेयर्स प्रेजेंट इन द नोज। अपने नोस्ट्रिल के अंदर जो हेयर होते हैं ना, ठीक है, वो हेयर क्यों होते हैं, टू फिल्टर द एयर। अभी एयर के अंदर बहुत सारे डस्ट पार्टिकल्स होते हैं ना, सो वो डस्ट अपने बॉडी के अंदर नहीं जाना चाहिए, इसके लिए हेयर्स जो होते हैं अपने नोस्ट्रिल के अंदर वो उसको स्टॉप करेगा बाय सम म्यूकस, ठीक है। म्यूकस, यहाँ पे भी कुछ ग्लैंड्स होते हैं जो म्यूकस सिक्रेट करेगा, और वो म्यूकस डस्ट पार्टिकल्स को अपने बॉडी के अंदर जाने से स्टॉप करेगा। फ्रॉम नोज द एयर पासेस थ्रू द थ्रोट टू लंग्स। हाँ, यही पाथवे है जहां से अपना एयर मतलब ऑक्सीजन अपने लंग्स तक पहुंचेगा। इन लंग्स द एयर पासेस डिवाइड्स इनटू स्मॉलर एंड स्मॉलर ट्यूब्स एंड फाइनली रीचेस एल्वियोलाई। हाँ, एयर पास करेगा, आगे जाते जाते ट्यूब्स छोटे होते एल्वियोलस तक पहुंचेगा। कैसे, ऑक्सीजन जाएगा फेरिंग्स, लैरिंग्स, ट्रकिया के बाद ब्रोंकस और डिवाइड होगा दो हिस्सों में, दो लंग्स है अपने पास, दोनों हिस्सों में जाएगा आधा, ठीक है। तो फिर ब्रोंकस आगे और ब्रोंक्यूल्स में डिवाइड होगा, और ब्रोंक्यूल्स का एकदम एंड स्टॉप रहेगा एल्वियोलस। एल्वियोलाई मतलब एक को हम एल्वियोलाई बोलेंगे और बहुत सारे को एल्वियोलस बोलेंगे, ठीक है। एक को हम क्या बोलेंगे, एल्वियोलाई, और बहुत सारे को एल्वियोलस। सो देयर आर बिलियंस, मेनी, अनकाउंटेबल एल्वियोलस, अ स्मॉल सैक लाइक स्ट्रक्चर इनसाइड द लंग्स, जो गैस को एक्सचेंज करने में हेल्प करेंगे। एल्वियोलाई, इट इज अ बलून लाइक स्ट्रक्चर विच प्रोवाइड्स अ सरफेस फॉर एक्सचेंज ऑफ गैसेस। ऑक्सीजन और कार्बन डाइऑक्साइड का बीच का एक्सचेंज यहाँ पे होता है। द वॉल्स ऑफ द एल्वियोलाई कनेक्ट विद द ब्लड वेसल्स, ब्लड वेसल से कनेक्टेड होते हैं, और ऑक्सीजन उसके अंदर जाएगा। इम्प्योर ब्लड का कार्बन डाइऑक्साइड गैस अपने एल्वियोलस के अंदर आएगा, और वो अपने बॉडी के थ्रू बाहर चला जाएगा, ठीक है। सो यू कैन सी व्हाट इज एल्वियोलाई, बेसिकली लंग्स, ठीक है। ट्रकिया डिवाइड होगा इनटू, ट्रकिया अपने दो हिस्सों में डिवाइड होगा, यहाँ पे हमने देखा था ट्रकिया दो हिस्सों में डिवाइड होगा, दैट इज ब्रोंकाई, एंड ब्रोंकाई के आगे ब्रोंक्यूल्स, ठीक है। यहाँ पे आपको ब्रोंकाई देखने मिलेगा, बड़े बड़े ब्रांचेस ब्रोंकाई, और वो और ब्रोंक्यूल्स में डिवाइड हो रही है, और हर एक ब्रोंक्यूल्स के एकदम एंड पे आपको मिलेगा एल्वियोलाई। सो व्हाट इज एल्वियोलाई, एंड पॉइंट ऑफ द रेस्पिरेटरी सिस्टम, एक्सचेंज ऑक्सीजन एंड कार्बन डाइऑक्साइड इन द ब्लड स्ट्रीम। सो ब्लड के अंदर ऑक्सीजन और कार्बन डाइऑक्साइड को एक्सचेंज करके हेल्प करेगा। ये एग्जैक्टली ये एक लाइव इमेज है ह्यूमन लंग को, जब हम क्रॉस सेक्शन करते तो आपको ऐसे दिखेगा, ठीक है। ये लाइव इमेज है, ठीक है। ये मैंने कहीं से लाया नहीं, ये गूगल से लाया नहीं, तो बोलेंगे आपने कहाँ से लाया लंग्स का इमेज, ठीक है, गूगल से लाया मैंने, ठीक है। सो जब हम लंग्स को क्रॉस सेक्शन लेंगे, लंग्स का जब हम क्रॉस सेक्शन लेंगे तो आपको ये वाला व्यू मिलेगा। सो यहाँ पे आपको ऐसे छोटे छोटे पोर्स टाइप जब दिखेगा, इसको जब आप माइक्रोस्कोप के नीचे देखोगे, ठीक है, इसको जब आप माइक्रोस्कोप के नीचे देखोगे तो आपको ऐसे मिलेगा एल्वियोलस। अभी ये एग्जैक्ट रियल इमेज नहीं है, ये एक एनिमेटरी इमेज है, ठीक है। हाँ, चलो, सो ये आपको दिख रहा है, ये आपके ब्रोंक्यूल्स, सो ब्रोंक्यूल्स के एकदम एंड पार्ट पे आपको क्या मिलेगा, एल्वियोलस, और एल्वियोलस में आपको रहेगा ब्लड कैपिलरीज मतलब आर्टरीज एंड वेन्स। आर्टरीज के पास आर्टरीज के थ्रू जाएगा ऑक्सीजन, और ये वेन्स के थ्रू आएगा कार्बन डाइऑक्साइड। सो यहाँ से ऑक्सीजन जाएगा इनटू हार्ट, एंड हार्ट की तरफ से जो कार्बन डाइऑक्साइड आया वो यहाँ पे, मतलब बेसिकली एक्सचेंज होगा, लेन देन ऑक्सीजन और कार्बन डाइऑक्साइड का एक्सचेंज यहाँ पे होगा, ठीक है। सो ऑक्सीजन आएगा, कार्बन डाइऑक्साइड यहाँ से बाहर चला जाएगा, ठीक है। चलो, alveolus, any of the many tiny air sacs in the lungs which allow the rapid gases exchange. So यहाँ पे gaseous exchange होने में हेल्प करेगा। ऑक्सीजन dissolve in hemoglobin from alveoli and carried from lungs to cells in all body parts. हाँ, अभी यहाँ पे ऑक्सीजन अपने RBCs के जाके मिलेगा, किसके साथ जाके मिलेगा, RBC, रेड ब्लड कॉर्पस्कल्स, अपने ब्लड सेल्स के साथ जाके ऑक्सीजन मिलेगा, एंड देन दैट ब्लड इज गोइंग टू सर्कुलेट थ्रू आउट द बॉडी बाय द सर्कुलेटरी सिस्टम कॉल्ड एज हार्ट। सो हार्ट अपने पूरे ब्लड को सर्कुलेट करते रहेगा, और
अभी यहाँ पे ऑक्सीजन तो चला गया, सो ऑक्सीजन भी सर्कुलेट हो जाएगा उसके साथ साथ, एंड अपने पूरे बॉडी में ऑक्सीजन फैल जाएगा, और ऑक्सीजन होने की वजह से अपने हर एक बॉडी सेल्स में एरोबिक रेस्पिरेशन हो पाता है और वहाँ पे एनर्जी बन पाती है। ठीक है, द ब्लड ब्रिंग्स कार्बन डाइऑक्साइड फ्रॉम द सेल्स रिलीजेस इनटू एल्वेलाई। हाँ, अभी ब्लड के अंदर, हाँ ब्लड अभी पूरा घूमेगा, सो ब्लड जब पूरा बॉडी में घूमेगा तो वहाँ पे ऑक्सीजन का यूटिलाइज होगा। ऑक्सीजन का जब यूटिलाइज हो जाएगा तो वहाँ पे बन जाएगा कार्बन डाइऑक्साइड। ठीक है, ऑक्सीजन का यूटिलाइज होने के बाद वहाँ पे बन जाएगा कार्बन डाइऑक्साइड, जो कि अपने ब्लड को इम्प्योर करेगा। ठीक है, वो अपनी कोई काम करनी, कार्बन डाइऑक्साइड अपना बाई प्रोडक्ट है। ठीक है, सो उसको फिर बाहर फेंकना पड़ेगा। सो उसको बाहर फेंकने के लिए फिर वो वेन्स के थ्रू आएंगे, वेन्स के थ्रू आके यहाँ पे एक्सचेंज होगा, ऑक्सीजन जब अंदर जाएगा तो उसी मोमेंट कार्बन डाइऑक्साइड यहाँ पे चला जाएगा, और हम जब एक्सेल करते तो एक्सेल करते वक्त हम कार्बन डाइऑक्साइड को एक्सेल करेंगे। ठीक है, चलो, सो रेस्पिरेशन इन प्लांट्स, अब हमने रेस्पिरेशन ह्यूमन बींग्स में कंप्लीट कर दिया है, और बस एक 2 मिनट में हम लोग रेस्पिरेशन इन प्लांट्स में कंप्लीट, जैसे अपने अंदर रेस्पिरेशन होता है वैसे प्लांट्स में भी रेस्पिरेशन होता है। ठीक है, प्लांट्स में भी रेस्पिरेशन होता है उनके सेल के लेवल पे। गैसियस एक्सचेंज अकर इन प्लांट्स थ्रू 3 पॉइंट्स। हाँ, अपने अंदर सिर्फ लंग्स में होता है रे, अपने अंदर सिर्फ लंग्स में होता है, बट प्लांट्स के अंदर ना 3 जगहों पे चीज रेस्पिरेशन होता है। कहाँ पे होता है? स्टोमेटा, लीव्स के स्टोमेटा पे होता है। लेंटिसेल्स इन स्टेम, स्टेम का जो लेंटिसेल्स होता है ना, आपने 9th में पढ़ा रहेगा टिश्यू के चैप्टर में, लेंटिसेल्स, सो वहाँ पे भी अपना रेस्पिरेशन होता है प्लांट्स में। एंड सरफेस ऑफ रूट्स, हर रूट्स के सरफेस पे भी रेस्पिरेशन होता है। ठीक है, ऐसे 3 जगहों पे रेस्पिरेशन होता है। ज्यादातर रेस्पिरेशन लीव्स के स्टोमेटा के लेवल पे होता है। ड्यूरिंग रेस्पिरेशन प्लांट्स एब्जॉर्ब ऑक्सीजन एंड यूज एनर्जी विथ ग्लूकोज टू क्रिएट कार्बन डाइऑक्साइड वाटर एनर्जी। ठीक है, अपने में एकदम उल्टा होता है और प्लांट्स में एकदम उल्टा होता है। ठीक है, अपने में क्या हो रहा था? अपने में क्या हो रहा था? वी इनटेक ऑक्सीजन, हम लोग क्या ले रहे थे? ऑक्सीजन ले रहे थे, ग्लूकोज को ला रहे थे और एनर्जी बना रहे थे। बट प्लांट्स क्या करेंगे? कार्बन डाइऑक्साइड को लेंगे। प्लांट्स क्या करेंगे? कार्बन डाइऑक्साइड को लेंगे, ग्लूकोज को लेंगे और अपना एनर्जी मॉलिक्यूल बनाएंगे। ठीक है, सी ड्यूरिंग रेस्पिरेशन इन प्लांट्स दे एब्जॉर्ब व्हाट? ऑक्सीजन। प्लांट्स क्या ऑब्जॉर्ब करेंगे? ऑक्सीजन, एंड दे यूज देम विथ ग्लूकोज टू क्रिएट कार्बन डाइऑक्साइड, वाटर एंड एनर्जी। ठीक है, बेसिकली प्लांट्स कार्बन डाइऑक्साइड लेते हैं, बट उनके अंदर जो फोटोसिंथेसिस प्रोसेस, आपने फोटोसिंथेसिस प्रोसेस देखा रहेगा। सो फोटोसिंथेसिस प्रोसेस में बेसिकली आपको क्या मिलता है? बाय प्रोडक्ट क्या मिलता है? आपको ऑक्सीजन मिलेगा, ऑक्सीजन मिलते मिलते आपको एनर्जी मिलेगा। ठीक है, फोटोसिंथेसिस होने की बाद की स्टोरी, फोटोसिंथेसिस होने के बाद एनर्जी बनती है। ठीक है, सो फोटोसिंथेसिस से हमें ये ऑक्सीजन मिलेगा, फोटोसिंथेसिस से क्या मिलेगा? ये ऑक्सीजन मिलेगा, और उसको फिर हम लोग यूज करेंगे रेस्पिरेशन में एनर्जी बनाने के लिए, एटीपी। उसको हम फिर क्या यूज करेंगे? एनर्जी बनाने के लिए यूज करेंगे। ठीक है, मतलब फोटोसिंथेसिस की आगे की बात अपन बात कर रहे हैं। ठीक है, सो यू कैन सी अ लीफ हियर। सो लीफ को जब आप माइक्रोस्कोप के लेवल पे जूम करेंगे ना, तो ये आपको मिलेगा स्टोमेटा। ठीक है, ये आपको क्या मिलेगा? ये आपको मिलेगा स्टोमेटा। यू कैन सी दिस स्टोमेटा। सो स्टोमेटा पे ये आपको जो ओपनिंग्स दिख रहा है ना, सो ओपनिंग से यहाँ पे आपको देखने मिलेगा, यहाँ पे ओपनिंग से आपको मिलता रहेगा H2O बाहर जा रहा है। ठीक है, H2O इवेपोरेट होके बाहर जा रहा है। ठीक है, और ये जब प्रोसेस होता है, सी द स्मॉल ओपनिंग्स ऑन द अंडर साइड, मतलब नीचे वाली साइड लीव्स के आर कॉल्ड स्टोमेटा। सो स्टोमेटा के एकदम नीचे माइक्रोस्कोपिक लेवल पे आपको मिलेगा ऐसे ओपनिंग ऑफ पोर्स, एंड वहाँ से आपका वाटर इवेपोरेट होकर चला जाता है। ठीक है, यहाँ पे जो वाटर बनता है वो इवेपोरेट होकर चला जाता है, बट वहाँ पे जो एनर्जी बनती है वो प्लांट्स फिर यूज करते हैं अपने लाइफ प्रोसेस में। ठीक है, सो बेसिकली रेस्पिरेशन टेक्स प्लेस इन प्लांट्स ऑल्सो, बट रेस्पिरेशन होने के लिए क्या लगेगा? ऑक्सीजन लगेगा। ठीक है, रेस्पिरेशन होने के लिए क्या लगेगा? ऑक्सीजन। ऑक्सीजन कहाँ से मिला प्लांट को? प्लांट तो इनपुट करता है कार्बन डाइऑक्साइड, बट प्लांट को ऑक्सीजन कहाँ से मिला? अरे न्यूट्रिशन में अपने पढ़ा था ना, प्लांट्स तो कार्बन डाइऑक्साइड का लेगा, but it is going to go through a process called as photosynthesis, and after photosynthesis we are going to get the oxygen, and with the help of that oxygen then plant is going to able to perform the respiration. Clear everybody? Okay, so this happens in plants, and here we come to the end of the respiration. So respiration खत्म, पूरा टॉपिक क्रिस्टल क्लियर, हर एक पॉइंट हर एक चीज मैंने डिस्कस किया है। मैं ये एक्सपेक्ट करके चल रहा हूँ आप लेक्चर सुनते सुनते आपने आपका नोट्स भी प्रिपेयर किया रहेगा। ठीक है, बस सुनते रहोगे तो मजा नहीं आएगा, नोट्स नहीं बनेगा। ठीक है, वीडियो के डिस्क्रिप्शन में पूरा चैप्टर का पीडीएफ आपको मिल जाएगा, जहां पे आपको पूरा लाइफ प्रोसेस चैप्टर का नोट्स मिल जाएगा। ठीक है, चलो बाय, विल मीट इन नेक्स्ट वीडियो। नेक्स्ट वीडियो हम लेके आएंगे ट्रांसपोर्टेशन के ऊपर। ठीक है, ट्रांसपोर्टेशन हो गया, फिर एक्सक्रीशन और चैप्टर खत्म। चलो बाय, कीप रिवाइजिंग, कीप मेकिंग योर नोट्स।